Good afternoon, students. We'll discuss today that what is the angular displacement. What is the angular displacement? Children, I am reminding you, you have read 2 units in second chapter, that was unit and dimension. I am asking that there you have seen there are 2 types of angle can be measured. There were 2 angles. What were they? There were plane angle and solid angle. Okay, solid angle and also I am not understanding solid angle and plane angle. Plane angle means the things which is lying in plane. I am writing in plane. प्लेन का मतलब होता है बेटा, प्लेन आप बोलते हैं, यू विल से कि प्लेन सर ये प्लेन पेपर है, गिव मी ए प्लेन पेपर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन एंड सॉलिड एंगल? प्लेन मीन्स व्हाट इज लेंथ यू नो, ओनली वन लाइन, लेंथ हैविंग ओनली लेंथ, आफ्टर दैट देयर इज नो थिकनेस एंड ब्रीथ, दैट इज लाइन. And for plane, length and breadth exist, thickness is not exist. So this is plane paper. If you will say कि सर ये तो plane paper है क्या? नहीं. Here length and breadth is existing, but with respect to height, thickness is existing also. So this is not plane. Plane have only children length and breadth. So plane have length and breadth without the thickness. If thickness comes, then it is not plane, it is a solid. Okay children, for studying I will not discuss the topic which we have to discuss today. Children, we have to discuss the angular displacement. अब कहें सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बट इन द केस ऑफ रोटेशनल बॉडी लीनियर is existing, but with the linear there one thing is also existing, and that one thing is what? Radii. Because if body is moving, so particles are moving in straight line, but bodies are moving in circular. Particle which is here, that is moving in straight line, but whole body is moving in rotational motion. तो पूरी बॉडी जो घूमती है वो रोटेशनल मोशन, और पार्टिकल्स जो चलते हैं वो लीनियर में चलते हैं, याद रखिए बॉडी. अब क्या होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है क्या? सो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे हम प्लेन. हाँ, हम बताएंगे आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल उसको कहते हैं, देयर आर 2 थिंग्स एग्जिस्ट. कहते हैं कि कह सकते हो कि ओनली 2 प्लेन x dash y dash, only 2 planes are existing. 2 axes are existing to measure the object, to measure anything, that is known as plane. प्लेन सर क्या पढ़ा रहे हैं? प्लेन देखो यार, हम पढ़ा रहे हैं ये 3D सॉलिड में, लेकिन the things on which we are writing, यहाँ पे देखिए सरफेस के पास, सरफेस इज ए प्लेन, तो सरफेस के पास लेंथ और ब्रीथ होता है, तो सरफेस पे प्लेन, ठीक है ना? तो याद रखेंगे इस चीज को. अब यहां हम उस चीज पर डिस्कस करते हैं. आइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं क्या, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखिए चलिए, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, या कह सकते हैं कि ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक. ये दिस इज हॉरिजॉन्टल चिल्ड्रन, एंड दिस इज मूविंग एंड दिस इज कम्स अगेन. सी, दिस इज मूविंग, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओरिजिनल पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू मेजर. तो अब देखिए होता क्या है कि इफ वी आर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां क्रिएट होता है, when we move a line, दोनों मूव करें,
तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों, जैसे लाइन सेगमेंट ये भी है ये भी, दोनों मूव कराएं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, बिकॉज वी आर मूविंग लीनियर. बट इफ वी आर फिक्सिंग वन एंड, इफ वी आर फिक्सिंग वन एंड और इफ वी आर रोटेटिंग इट, फिक्सिंग वन एंड और फोकसिंग वन एंड, या किसी वन एंड के फोकस करके हम मूवमेंट जब करते हैं, दैट इज आल्सो मूव. वहां दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स देयर. What there are? See children, the point which is here, which is moving, this tip point, they are moving, and the things which is not moving here, this is not moving, only at a point it's moving. So there, this point is considered. So the movement, this moment is known as radial movement, because this behaves like a radius. This behaves like a radius, children. So this moment is known as moving like this. So this moment is radial movement. अब देखिए, अब यहाँ पे जो टिप था, the tip which was here, which is not leaving its place, which is fixed. अब ये भी मूव कर रहा है, ये उठा, यहां से मूव किया और ये 360 घूम गया. यहां हमने गिना, कैलकुलेट किया कितना ये घूमा, तो कुछ घूमा मीटर में स्केल. तो यहाँ दो चीजें डिस्प्लेस्ड, एक तो रेडियल हुआ और एक हुआ एंगुलर. और इनके बीच में क्या दूरी है देख लेंगे, इनके बीच में क्या दूरी है, तो दैट इज अब कहेंगे कि सर इसको निकालने के लिए, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एक स्पीड से, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. इसके डिस्प्लेसमेंट में हम ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रेडियल वाला मिल जाएगा. कहेंगे अगर यहीं पे घुमा है तो रेडियस 0 है, कुछ नहीं मिले, लेकिन यहां पे घुमा है तो घूमने डिस्प्लेसमेंट कितना घुमा और ये मल्टीप्लाई. समझिएगा, अगर मान लीजिए हम यहां का पार्टिकल घुमा, जहां हम पकड़े हैं ये घूम गया, तो जब यहां घुमा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है और ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां का पता चला. यहां का कर दें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां का ये कितना घुमा और ये यहां की डिस्टेंस. इसी तरह से यहां की डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें तो यहां, मतलब ये है कि इफ वी मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स पॉइंट where body is moving, along body is moving, and the distance कहीं से भी वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई तो रेडियल मिल जाएगा. यही कहना चाहता है. दिस इज स्टेटमेंट, ये कहने का मतलब यही है, इसके कहने का मतलब यही है. नाउ वी आर सीइंग, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ओके चिल्ड्रन, सी द एग्जांपल्स. This is a circle. Circle comes in two rings. This is point. This is the origin of the circle. See children, body is moving like this. Suppose body is at point P. After some time it is come moving like this. यहाँ पे आता है. अब यहाँ पे मान लीजिए थीटा एंगल बनाना और ये डिस्टेंस थीटा क्या है, ये आर्क लेंथ मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लीजिए r. तो एक बहुत पुराना, यू नो दैट ओल्डेस्ट फार्मूला विच यू हैव रेड इन क्लास 7th or 8th, and that was what? Angle is equal to arc upon radius. ये बहुत दिन से पढ़ा है, you have read in class 10th also. You have read in class 10th also. Angle is equal to arc upon radius. बहुत दिन से पढ़ा. इसी का ये वर्जन है, this is this, यही है ये. It's not necessary to write down so much language. Angular displacement and linear displacement and radius. Linear displacement supposed to be as, radius is not. बस यही है.
एंगल इज इक्वल टू आर इंटू आर का अपॉन रेडियस डिवाइडेड बाय, मतलब जो चीज जो डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां पे हो, द डिस्प्लेसमेंट विच इज फ्रॉम हियर, और इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको एंगल पता चले। यहां अगर बॉडी पहुंच गई तो ये डिस्प्लेसमेंट और रेडियस डिवाइड कर दीजिए, यहां पहुंच गया तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, यहां पहुंच गई बॉडी तो ये समझ लीजिए ये पूरा डिस्प्लेसमेंट और ये जितना रेडियस पूरा घूम गया 2 पाई, तो डिवाइड कर दीजिए। समझ के उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अंडरस्टूड? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको एक ही चीज, यू हैव टू ओनली रिमाइंड टाइम more times angle is equal to r upon radius, angle is equal to r. This is the formula of whole angle, this is the concept of whole angular motion. Angle is equal to r, angle, this angle I have taught you with pen, with the help of pen. अब आते हैं इसकी कुछ notations क्या हैं थोड़ा देख लें। Angular displacement, angular displacement is angle described by the position vector r about the axis of rotation। कह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर वेक्टर लेंगे तो वेक्टर 3D वेक्टर रूल काम करने लगता है, और वेक्टर रूल आरएचएस रूल पर काम करता है। आपने पढ़ चुका है, यू रेड दैट थिंग्स। अब कह रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज डिनोटेड बाय थीटा, ग्रीक वर्ड थीटा इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आई हैव टॉट यू लीनियर, ये पार्टिकल हमने बताया था शुरू में कि जो पार्टिकल्स चलते हैं ये लीनियर होते हैं, लेकिन जो एंगल कवर होता है वो एंगुलर। इसी वजह से अब कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ये तो होता है बट यहां भी होता है, ये मेन है, इसी वजह से हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अदरवाइज अगर ये ना रहेगा तो कहीं भी आता है देयर इज नो मीनिंग। अब देखिए, अब आते हैं कि इसकी, चूंकि ये अब हम जानते हैं चूंकि एंगल है और एंगल के पास हमने पास ये प्लेन एंगल, दिस प्लेन एंगल, और for this plane angle we have a complementary unit, radian and स्टेरेडियन। अब कहेंगे कि स्टेरेडियन सर समझ नहीं आ रहा है, रेडियन तो समझ में आ रहा है। देखो भैया, ये भगवान ने एंगल का बहुत अच्छा यूज दिया, ये है हमारे पास भी है। देखिए एंगल बना 90 बना, ये 180 बना, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, आप इमेजिन कर लीजिए। तो these are the radians. Angle always notation of angle are radian. अब रेडियन क्या है? रेडियन which contains pi, डिग्री को भी रेडियन में बदलना, I think you should know. अब देखिए कभी कभी इसका डायमेंशन पूछा जाता है, यहाँ यूनिट्स तो हमने मालूम है, डायमेंशन क्या होता है। The children, I am putting a question to you that what is the difference between unit and dimension? Give me, write the answer of this question in your copy, and when you will come in school, you will show to me what is difference between unit and dimension. So remind and write it. Tell me the example, search it, and give me. Children, dimension. Angular displacement have dimension only radian because already unit है. This is also fundamental unit. There are two types of unit, fundamental unit and derived unit. Fundamental units are those unit which are base for every unit. They are not defined, they are base. They are नींव का काम करते हो, that cannot be changed, बदल नहीं सकते, तो that is known as fundamental. और जो fundamental दो या दो से अधिक fundamental से बनते हैं, they are known as what? ये सूत्र derived unit. So M0, L0 and T0. This is the dimensionless quantity. So angle is a dimensionless quantity, but it is varying. ठंडे दिमाग से कह सकते हो कि it is a tensor.
इट इज नॉट टेंसर क्वांटिटी। अगर समझने के लिए आप बोल सकते हो तो इट मे बी टेंसर क्वांटिटी। थिंक कैन व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी, फाइंड इट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। So think it, is it tensor quantity or not? Give me, find the answer and give me, find the answer and give me your answer. Children, अब कह रहे हैं कि S is equals to theta and vector forming, theta and vector of right hand rule. Yes. ऐसे वेक्टर और आई हाथ लाइक दिस, राइट हैंड रूल यही होता है, ये रूल होता है, फोर्स, डायरेक्शन ऐसे, रेडियस ऐसे, मोमेंट ऐसे, फोर्स इधर लगेगा, आउटर वर्ड में लगेगा बेटा, यानी r इंटू थीटा, r into theta is equals to r into theta is equal to what, s। तो s की डायरेक्शन क्या होगी, s की डायरेक्शन ये काटा ऐसे घूम रही है, रेडियस ऐसे, इफ रेडियस द फोर्स इज अप्लाइंग, इधर फोर्स की तरफ अप्लाई कर रहा है, कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ s विल बी आउटवर्ड फॉर मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, सी दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, द फोर्स विल बी आउटवर्ड फॉर मोमेंट ऑफ, मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज चिल्ड्रन, रिमेंबर पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन द केस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द force, where force will be applied, where will the axis of rotation, तो the axis of rotation या कह सकते हो axis of rotation you can say that कि outer for anti clockwise, clockwise होगा तो क्या होगा, clockwise का मतलब ये होगा कि बॉडी ऐसे घूम रही है, बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे होगा, ऐसे, डायरेक्शन ये है, ये रेडियस है, डायरेक्शन ये है, आप कह सकते हो अंदर की तरफ, क्योंकि ये दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए फोर्स अंदर साइड की तरफ लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज जब ये मूवमेंट कर रहा है तो फोर्स बाहर की तरफ लाएगा। ज्यादा समझने के लिए थिंक एंड कीप, ऐसे कर सकते हो आप कि पाम रूल लगा सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड दिस वन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो इस तरह से लगा सकते हो ए क्रॉस बी। आपको अगर नहीं समझ में आया, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मैं समझा रहा हूं आपको, सपोज देयर इज ए वेक्टर ए एंड देयर इज वेक्टर बी, इनको क्रॉस कर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी विल बी, मतलब सी की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो अगर दिस इज वेक्टर ए बेटा, दिस इज वेक्टर बी, वी आर प्रोडक्टिंग इट ए क्रॉस वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ द सी विल बी लाइक दिस। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के 90 डिग्री पे होती है। ये स्क्रू रूल है या राइट हैंड रूल बोलते हैं, याद रखिएगा। उसी तरह का ये भी है, तो याद रखिएगा कि इनकी डायरेक्शन जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, व्हेन दे मूव्स इन क्लॉकवाइज तो आउटरवर्ड, व्हेन दे मूव सॉरी व्हेन दे मूव इन एंटी क्लॉकवाइज आउटरवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स विल बी लाइक दिस वन, और व्हेन दे मूव्स इन क्लॉकवाइज तो ये फोर्स जो है ऐसे घूम रहा है, तो ये अंदर की तरफ होगा। याद रखिए बायां हाथ नहीं लगाइएगा, ओनली राइट हैंड रूल एक्ट्स। आइए चिल्ड्रन, यहाँ आई हैव रिटन हियर चिल्ड्रन आर एच रूल, राइट हैंड रूल व्हिच यू हैव रेड इन क्लास 12। अब कह रहे हैं इट इज आल्सो नोन एज एक्सियल वेक्टर। कभी दिया जाता है कि भैया ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है? एक्सियल का मतलब ये बॉडी, अगर इफ ए बॉडी इज मूविंग, यहां पे मूव कर रही है ये, अगर ये बॉडी सपोज कर लीजिए कि यहां पे ये बॉडी मूव कर रही है, तो ये एक लाइन पे जिस पर ये मूव कर रही है, और जब बॉडी कोई किसी एक पॉइंट के अबाउट मूव करे तो वो एक लाइन बना, जिसे आप कहेंगे कि सर क्या है, तो विल सी
यू हैव सीन इन मशीन्स ऑफ आटा चक्की, कि जो पुली लगती है ना, वो एक प्लेट लगी रहती है, ऐसे लगा रहता है, उसी के अबाउट सारी पुलीज घूमती है। तो दैट इज एग्जाम्पल, दैट रॉड यू कैन से, दैट सॉफ्ट, ये जितनी भी पुली लगी रहती है इन केस ऑफ आटा चक्की मशीन, तो जितने भी होते हैं वो पूरा जो पुली, जिसको पुली लगी रहती है, नॉट टॉकिंग मशीन, तो जिसको पुली बहुत सारी लगी रहती है, ये मशीन से लगा रहता है, ये इसको घुमाता है, फिर ये वाला पार्ट आटा चक्की की पुली को घुमाता है, तो ये जो है ना, ये एक्सियल वेक्टर, उसे एक्सियल वेक्टर कहते हैं, याद रखेंगे। आटा चक्की एग्जांपल you have understood because everyone have gone to atta chakki machine and seen that scenario. You can see in different machines also in videos. अब देखें axial vector for anti-clockwise since rotation is perpendicular to plane and यहाँ लिख सकते हो outward. अब कह सकते हैं 2 पाई रेडियन इज 360। देखो भैया कितना भी घूमेगा, मैक्सिमम अगर घूमता है तो इट विल कवर चिल्ड्रन 360। सो रिमेंबर कि बहुत ज्यादा घूमेगा, 360 घूमता है, ये इसे 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, वी विल मीट फॉर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बाय।